रेडियो नजरिया आवाज हमारी। વેલકમ ટુ રેડિયો નઝરિયા 107.8 આવાજ અમારી પર હું છું તમારી મિત્ર મહેઝબીન. કેમ છો અમદાવાદીઓ? મને આશા છે કે તમે બધા સારા હશો. હું ફરી એક નવો મુદ્દો લઈને આવી છું. તમારું સ્વાગત છે સિટી તંત્રના ખાસ રેડિયો પ્રોગ્રામ જેનું નામ છે એક નજર સમસ્યા પર. આજના રેડિયો પ્રોગ્રામમાં આપણે ચાંદ સૈયદ વિસ્તારની સમસ્યાઓ વિશે વાત કરવાના છીએ. અમદાવાદ એ ગુજરાત રાજ્યનું સૌથી મોટું શહેર છે. તે ભારતના શહેરમાં 7મા ક્રમે છે. 55 લાખની વસ્તી ધરાવતું આ શહેર સાબરમતી નદીના કાંઠે વસેલું છે. 1980ના દાયકામાં ગાંધીનગરને ગુજરાતની રાજધાની તરીકે જાહેર કરવામાં આવી હતી. તે પહેલાં અમદાવાદ ગુજરાતની રાજધાની હતું. શરૂઆતમાં અમદાવાદને આશાવલ કહેવામાં આવતું હતું. આ શહેરનો પાયો વર્ષ 1811માં નાખવામાં આવ્યો હતો. આ શહેરનું નામ સુલતાન અહેમદ શાહના નામ પરથી અહેમદાબાદ નામ પડ્યું. આ શહેર હવે તો હેરિટેજ સિટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ વાત તમે જાણો છો. આજે આપણે આ શહેરની સમસ્યાઓ વિશે વાત કરવાના છીએ. મળીએ થોડી જ વારમાં. ત્યાં સુધી તમે સાંભળતા રહો રેડિયો નઝરિયા 107.8 આવાજ અમારી, તમારી મિત્ર મહેઝબીન સાથે. रेडियो नजरिया आवाज हमारी। વેલકમ ટુ રેડિયો નઝરિયા 107.8 આવાજ અમારી પર હું છું તમારી મિત્ર મહેઝબીન અને તમે સાંભળી રહ્યા છો આજનો ખાસ રેડિયો પ્રોગ્રામ જેનું નામ છે એક નજર સમસ્યા પર. આજના રેડિયો પ્રોગ્રામમાં આપણે આગળ વધીએ અને વાત કરીએ ચાંદ સૈયદ વિસ્તારમાં લોકોને કેવી કેવી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે. शबनम बानो, शेर आलम पठान। पानी की है, पत्थर की है, लाइट के खंबे की है, गटर लाइन की है, कुछ भी काम हुआ नहीं है। कितनी संस्थाएं आई और कितनी संस्थाएं गई, हमको भरोसा बैठा ही नहीं कोई पे, कोई ने काम ही नहीं करा हमारा। ये समस्या 40 साल से चल रही है। मैं यहाँ पे 45 बरस हो गए मेरे को, मेरी उम्र, मेरा जन्म ही यहाँ का है। सब सी जैसे आप अभी आए ऐसे सब लोग आते हैं, खाली साइन लेते हैं, फोटो पाड़ते हैं, वीडियो उतारते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद कोई काम ही नहीं होता है। प्रोसेस सोचिए, चिट्ठी मिलती है, कुछ होता नहीं, चिट्ठी लेके हम आ जाते हैं, चिट्ठियाँ जमा रहती। राशन भी हमारा इतने कार्ड है उसके पास, हमने वहाँ पे भी अर्जी करी तो बोले अपना बाजार जाओ। राशन वाला राशन भी बरोबर नहीं देता है, पानी वाला पानी नहीं देता है। 1 कलाक पानी मिलता है, 1 कलाक में इंसान क्या करेगा? शाम को हमने बोला पानी दो तो पानी हमको आधी कलाक भी नहीं मिलता है। कोई काम यहाँ पे मिलता नहीं है। कितनी संस्थाएं आई, हम बोले हम काम देंगे, सबको विश्वास जगाए, सबके डॉक्यूमेंट लिए कि हम काम देंगे और डॉक्यूमेंट भी हमारे चले गए, पर हमको घर बैठे कोई काम नहीं मिला। વેલકમ ટુ રેડિયો નઝરિયા 107.8 આવાજ અમારી પર હું છું તમારી મિત્ર મહેઝબીન. સિટી તંત્રના ખાસ રેડિયો પ્રોગ્રામમાં તમારું સ્વાગત છે જેનું નામ છે એક નજર સમસ્યા પર. તો મિત્રો, આપણે સાંભળ્યું કે ચાંદ સૈયદ વિસ્તારમાં 40 વર્ષોથી પીવાનું ચોખ્ખું પાણી, ગટર, પથ્થર અને લાઇટના થાંભલાની સમસ્યાઓ છે. અને આ સમસ્યાના કારણે શબનમબેનને ઘણી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે. પહેલાં 30 મિનિટ સુધી એટલું ગંદુ પાણી આવે છે કે તે વપરાશ યોગ્ય નથી હોતું. એના પછી સારું પાણી આવે છે, પણ એક નળથી 2 થી 4 ઘરના લોકો પાણી ભરે છે અને પાણી પણ ધીમું આવે છે. તેથી લોકો ઓછું પાણી ભરી શકે છે. સાથે સાથ ગટરનું પાણી પણ પીવાના પાણીમાં મિક્સ થઈ જતું હોય છે અને આવું પાણી પીવાથી લોકો બીમાર પડી જતા હોય છે. આપણે રેડિયો પ્રોગ્રામમાં આગળ વધીએ અને બીજી મહિલાઓ જોડે વાતચીત કરીએ અને જાણીએ તેમનાથી કે આ સમસ્યાના કારણે તેમને કેવી કેવી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે. लाल बीबी इब्राहिम, मेरा जन्म यहाँ का हैगा। मेरी उम्र 50 साल की होने आई है। समस्या तो यहाँ पे सब चीज की है, कोई चीज का बोलने जैसा ही नहीं है। यानी सब चीज की है। हम हर जगह जाते, चिट्ठी लाते, फिर आते, थोड़ा काम करते, बता के न चले जाते। उसके बाद कोई आता नहीं है देखने। दुनिया भर के मच्छर, बच्चे बीमार होते, ये होते, आते एक दिन वो भी दवा डालने, फिर उसके बाद वो भी गायब हो जाते। यानी जो अर्जी देने जाते हैं वो उसके 4-5 दिन भी आवे उनकी मर्जी से, फिर आए तो जो सलिए ये वगैरह कुछ करके जाते एक दिन,
उसके बाद उनका पता ही नहीं होता है। कर तो दिया है, फोन कर देते सर को कि देखो हमारी ये वीडियो हम भेजते हैं कि हमारा काम हो गया। वो बस जरा सा करके न भेज देते फोन के देखो हो गया। बस ये है कि हमारे ये सब जो सोल्यूशन है ये पूरी हो जावे ना, अच्छा हो जावे, बरोबर के नहीं। गटर है, पत्थर है, ये बच्चे बीमार होते हैं, मच्छरों की दवा घर पे आके डाल जावे, खम्बे लाइटों के बंदे। गटर में भाई गंदा पानी आता है, सुबह के 6 बजे से चालू होता है, गंदा 1 कलाक पानी जाता है, बाकी सब गंदा है। गंदा थोड़ी देर बाद साफ आता है तो भर लेते हैं, वापरते ने बीमार हो जाता है हमारे बच्चे ने। गटर वालों को कहने जाते थे कि जाओ अभी आते करके ना 8 दिन खेत डालते, कचरा का एक जाओ वो मार देते सिलिया, तो जाओ बहन हो गया कहने फोटो पा के निकल जाता। अरे 40 साल ऊपर से हो गए, मेरे को 60 बरस तो हो गए, ये ऐसा ही चलता ही रिया, या कोई सुना ही नहीं होती ना पत्ता डालना था, ये एरिया को सुना ही नहीं होता न, कोई आगे वाली नहीं है ये एरिया का, हमारा कोई आता ही नहीं। 100-150 घर है हमारे यहाँ, कितना टूट गए हमारे, चलेगा ये ऐसी मुसीबत के लिए। कुछ मजदूरी भी नहीं है तो कोई मजदूरी जवान बच्चा करे, जवान छोकरे भागते फिरते, मेहनत का भी पैसा खा के भी मेहनत नहीं मिलती, क्या करने का, कुछ भी नहीं मिलती। औरतें जवान छोकरी को मेहनत नहीं मिलती, हम हैरान परेशान है, पत्थरों की हैरान परेशान। 5 रुपए की भी मेहनत नहीं मिलती है एरिया में, हमारे को जहाँ भी जाता है कहते ये एरिया में नहीं दे रहा, तो हमारे क्या कंधे का बोलो। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। વેલકમ ટુ રેડિયો નઝરિયા 107.8 આવાજ અમારી પર હું છું તમારી મિત્ર મેહઝબીન અને સિટી તંત્રના ખાસ રેડિયો પ્રોગ્રામ જેનું નામ છે એક નજર સમસ્યા પર તમારું સ્વાગત છે। શબનમબેનથી આપણે જાણ્યું કે તેમના વિસ્તારમાં ઘણી સમસ્યાઓના કારણે તેઓ ઘણી સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે। કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ અને શબનમબેન વિશે જાણીએ। शबनम बानू, शेर आलम पठान। एक बहन, हम 2 बहनें, मम्मी है, पापा की डेट हो गई। और वहाँ पर भी मैं घर में ही काम करती थी, मेरी अम्मी रोटी सब्जी की दुकान लगाती थी। उसके बाद मेरी 2002 में मैरिज हो गई। लाल दरवाजा होंगाट ऑफिस के बाजू में 2 नंबर की गली। मम्मी के साथ करती थी रोटी सब्जी की, मम्मी की होटल लगती थी, पर घर में ही करती थी, होटल पे मम्मी बैठे ले। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 8 तक पढ़ाई की है, पर उसके बाद जब मैं 9 में जाना चाहा मैंने, तो घर के हालात ऐसे थे कि मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, मैं सबसे बड़ी हूँ, भूख के वो ला भी नहीं सकते थे, यानी ऐसी तकलीफ थी। मेरे पापा का काम धंधा नहीं था, मम्मी करते ले, तो फिर मैंने 9 नहीं पढ़ी, मैंने छोड़ दी। पर लेकिन मैं बहुत कुछ सीखना चाहती थी, पार्लर का सीखना था, मेरे सिलाई काम सीखना था, मेहंदी काम सीखना था, सब कुछ सीखना चाहती थी। बहुत उम्मीद थी मेरे को सीखने की सब चीज, पर मैं नहीं कर सकी। जब आप नवी शादी करके यहाँ का माहौल कैसा था? परिस्थिति यहाँ की भी खराब थी, जैसे क्या थोड़ा बता सकते? बहुत तकलीफ थी। मेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं थी, मेरे देवर की नहीं थी, मेरे ससुर की नहीं थी, मैंने यहाँ पे भी बहुत तकलीफ रही। अब सब अच्छा है। तो तकलीफ घर कैसे चलता था, मतलब किसी की नौकरी? ऐसा हम लोग यहाँ पे सामने एक कारखाना था, मेरी ननद है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है, हम सब 1 रुपए का एक शर्ट इस्त्री करते थे। वो सब हमने बहुत कुछ करा जैसे जिंदगी के अंदर। एक ही लड़का है मेरा, 10 फेल हो गया, फिर उसने पढ़ाई नहीं करी, अभी मैकेनिक का कर दिया, वो नहीं किया आगे, बोले बस अब मेरे नहीं करना। मेरा लड़का बोले कि अब मेरे पढ़ाई नहीं करनी, तो फिर मैंने उसको हुनर पे नाक दिया, अभी वो गाड़ी बनाता है। आप क्या करते हो? नहीं, मैं घर हाउस हूँ, अभी कुछ काम नहीं है। यहाँ पर कोई लेडीजों को काम भी नहीं मिलता है, कोई लेडीजों के लिए कोई काम लाओ, कोई कितनी संस्थाओं को बोला, कोई लेडीजों के लिए कुछ काम भी नहीं आता। ऐसी कोई मुसीबत है जिससे आपको वो सीखने मिला और इससे आप आगे बढ़े? मुसीबत तो बहुत झेली मैडम, इसकी कोई हद नहीं, लेकिन हर कदम पे एक सीख सीखने को मिली कि संभल के चलना बहुत जरूरी है, काम होता नहीं है हमारा। रेडियो के माध्यम से दूसरे को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी अर्जी सुने और हमारा काम करावे। हमारा पूरा मोहल्ला बहुत तकलीफ में है। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। તો સાંભળ્યું ને મિત્રો, આજના રેડિયો પ્રોગ્રામમાં આપણે ચાંદ સૈયદ વિસ્તારમાં પ્રાથમિક સમસ્યાઓ પર ચર્ચા કરી અને આ સમસ્યાના કારણે ત્યાંના રહેવાસીઓને કેવી કેવી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે તે જાણ્યું। આજના રેડિયો પ્રોગ્રામ વિશે કોઈ પણ સંબંધિત પ્રશ્નો હોય તો તમે અમને કોલ કરી શકો છો। અમારો નંબર છે 8849749472। હું નંબર ફરીથી રિપીટ કરું છું, 8849749472। અને હા,
અમને સોશિયલ મીડિયા પર ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા. તમારે ફક્ત સર્ચ કરવાનું રહેશે રેડિયો નઝરિયા 107.8. ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી તમે સાંભળતા રહો રેડિયો નઝરિયા 107.8 આવાજ અમારી. તમારી મિત્ર મેઝબીન સાથે.